Dear students, welcome back. Today I will discuss with you two important named reactions, Perkin condensation and reformers की reaction. Myself, Rakesh Singh, Associate Professor in Chemistry, Government Degree College, Kathua, Jammu and Kashmir. Let us discuss these two important named reactions. First one is Perkin reaction. The reaction was developed by William Henry Perkin. It involves the reaction of aromatic aldehyde with an aliphatic anhydride in presence of sodium salt of same carboxylic acid from which anhydride has been derived. It's very important. जैसे गिवन एग्जांपल में हमने एनहाइड्राइड लिया है एसिटिक एनहाइड्राइड मीन इट इज एनहाइड्राइड ऑफ एसिटिक एसिड इट इज एनहाइड्राइड ऑफ इक it means the sodium salt should be of the same acid, that is sodium negative sodium acetate. Sodium acetate will act as base. ये किसका काम करेगा बच्चे? बेस का. पता है acid ionized to give carboxylate ion along with the release of H positive. A weak acid has a strong conjugate base. कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंपैरेटिवली वीक एसिड होते हैं इनऑर्गेनिक से, इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रांग होगा. EH3 नेगेटिव will act as strong. अब होगा क्या? The reaction between aromatic aldehyde and aliphatic anhydride will take place. There will be a condensation reaction. Condensation reaction होगा बच्चे with loss of water. हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन यहाँ से, H2O loss of water होगा यहाँ से, and we get this condensation product. में ये मिलेगा. Condensation product upon hydrolysis, जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, and we get finally alpha beta unsaturated acid, that is normic acid in this case. मैंने वन स्टेप में ये रिएक्शन यहाँ पे दिखाया है तो सीधा इसी को दिखाया है सिनोमिक एसिड को. फाइनल प्रोडक्ट यही है, इज द फाइनल प्रोडक्ट, बट हमें बॉयल करना पड़ता. जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है उसको क्या करना पड़ता? बॉयल. बेहतर है आप इसको इस तरीके से थोड़ा एलैबोरेट करके लिखिए. एलैबोरेट करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसा कि मैंने आपको कहा, एज आई सेड, सोडियम एसीटेट में जो एसीटेट आयन है दैट एक्ट एज बेस and remove H positive from here. How it remove? This anhydride part is exerting minus I effect on this carbon, minus I effect, and that effect travel to hydrogen, and as a result, hydrogen atom acquire partial positive charge. Mean this hydrogen is acidic in nature. This sodium acetate ion of it remove H positive from here and make this electron pair free. It comes to CH2. This CH2 become negative carbon ion. This carbon ion attack on the carbonyl carbon. Displacement of pi electron होगा. आपको क्या मिल जाएगा? CHO नेगेटिव. O नेगेटिव जो है वो फिर से ये वाला H जो इसने थोड़ी देर के लिए रखा अपने पास ले लेगा. CHOH हमें ये मिल जाएगा. बेंजीन CH, ये देखिए बच्चे CHOH, CH2 इसके साथ जुड़ गया. CH2 attached to COOCOCH. Again sodium acetate acting as base remove this H. इसी CH3 का ना, इसी का अब ये CH2 बन गया है. It is still acidic क्योंकि ये तो इसके साथ attach ही है. It remove H from here and facilitate in the removal of water. Ultimately loss of water. Loss of तभी हम कहते हैं कंडेंसेशन. कंडेंसेशन प्रोडक्ट ये बनेगा. We get the condensation product because there is loss of water. HOH. अब H ये बॉन्ड
इस साइड क्यों मूव किया, इधर क्यों नहीं मूव किया, तो कार्बोनाइल ग्रुप था, इधर इसलिए मूव किया बच्चे प्रोडक्ट को देखो, एक्सटेंडेड कंजुगेशन आती है इसमें, तभी एरोमेटिक एल्डिहाइड की वो बात करता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट, एरोमेटिक बेंजीन रिंग completely conjugated with this double bond pi sigma pi, and this pi then again conjugated with carbonyl. So there is extended conjugation from this benzene ring to the carbonyl. More the conjugation, more the stability. The product is highly stabilized by Rayonance. That is why loss of water occur here with formation of double bond, which helps in extended conjugation. उसके बाद बच्चे हमने सिंपली इसको बॉयल करना वाटर के साथ, सिंपली बॉयल विद वाटर, वाटर इसकी हाइड्रोलिसिस कर देगा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके, यस, CW नेगेटिव पॉजिटिव, CH3 COOH, and we get alpha beta unsaturated is सिनोमिक एसिड। क्या है, बेंजीन के साथ लगाइए, इसका नाम क्या बच्चे, सिनोमिक एसिड, प्लस क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। So let us see the detailed mechanism, same reaction, more better understanding। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसका क्या ले लेते हैं, डिटेल्ड mechanism of Perkin reaction। First step, as I explained, the acetate ion acting as base move H from the acidic anhydride. H is acidic because of minus I effect of this anhydride, minus I carbonyl, minus I effect, and we get this प्लस। आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं एसिटिक एसिड। This carbanion acting as nucleophile attack the electrophilic carbonyl carbon with displacement of pi electron, and we get this intermediate O negative. This is O negative of alcohol. Which O negative is more stable? Carboxylate ion O negative is more stable or alkoxide? Alkoxide में alcohol का O negative ज्यादा stable है, carboxylate ion. Why? Because it is resonance stabilized. कार्बोक्सिलेट आयन जैसे एसीटेट आयन है, इसका O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। तो जो एल्कोक्साइड आयन, ये अल्कोहल का O नेगेटिव है, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर लेगा एसिटिक एसिड, तो यहाँ एक्सट्रैक्ट H पॉजिटिव फ्रॉम, ठीक है, और फिर से एसीटेट आयन लिबरेट हो जाएगा। एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल, उसकी एग्जिस्टेंस ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दिस O नेगेटिव, तो मिल जाएगा ये अल्कोहल। एसीटेट आयन हेल्प एक्टिंग एज बेस, इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल क्यों हुआ, उसका रीजन मैंने बताया, बिकॉज वी गेट ए प्रोडक्ट इज स्टेबलाइज्ड बाय एक्सटेंडेड कंजुगेशन, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, देखिए एक्सटेंडेड कंजुगेशन है प्रोडक्ट, दिस फैसिलिटेट द रिएक्शन, ये रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, वाटर लॉस को फैसिलिटेट करता है। Acetate ion will help in removal of water from here like this. We get the final condensation product, इसकी बात कर रहे हैं Perkin reaction। उसके बाद अगर आप इसको बॉयल करते हैं वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस करते हैं, do the hydrolysis with water, वाटर इसकी हाइड्रोलिसिस कर देगा बच्चे इस तरीके से, acting as nucleophile will attack the carbonyl carbon, and what do we get? We get final product, that is cinnamic acid, alpha beta unsaturated acid, along with formation of acetic acid, O negative H positive, we get cinnamic। This was all about what, Perkin reaction, इसकी utility क्या हुई, with the help of this we can prepare alpha beta unsaturated acid। लेकिन याद रखिए, it is a reaction of aromatic aldehyde with aliphatic anhydride in presence of sodium salt of same acid from which anhydride has been derived, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड, तो सोडियम सॉल्ट कौन सा लेना आपने, सोडियम एसिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सी द नेक्स्ट रिएक्शन, फॉर्मेट्स की रिएक्शन। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फॉर्मेट्स की रिएक्शन।
It is a reaction of aldehyde or ketone, with alpha haloesters using metallic zinc. Reaction of aldehyde or ketone with alpha haloester using metallic. This is solvent, dry ether. Alpha haloester बच्चे ये हो गया CH2 COOC2H. This is ester part. Ester के साथ जो first carbon that is alpha. This is alpha. Halogen मैंने यहाँ पे कौन लिया है बच्चे? ब्रोमीन. अल्फा ब्रोमो एस्टर हो गया ये. हमने इसको ट्रीट किया, उसने कहा एल्डिहाइड आर कीटोन, हमने ले लिया एस्टल्डिहाइड. व्हाट हैपेंड? दिस रिएक्टेड विद दिस टू फॉर्म दिस कंपाउंड. ऐसा लग रहा है कि CH2 ने यहाँ अटैक किया है. ये तो पॉजिटिव कार्बन तो पॉजिटिव है, तो CH2 भी यहाँ पॉजिटिव है. हाउ इट कैन अटैक? उसका कारण क्या, मैं थोड़ा यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको बच्चे. होता क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैकेनिज्म है, आपको और क्लियर हो जाए. जिंक क्या करता, यहाँ एंट्री कर, इट फॉर्म दिस कंपाउंड CH2ZnBr, COOC2, एंड दस कह सकते कि इट मेक CH2 क्या बचे, मेक CH2 negative and we have Zn. Now it can attack. Now it can attack here carbonyl. अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये कैसे. CH3CH O नेगेटिव ले लेगा, ZnBr पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा OZnBr, और CH2 कार्बोनाइल कार्बन से अटैच हो. फिर हमने सिंपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है. यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी बच्चे, यहाँ पे O नेगेटिव ले लेगा H पॉजिटिव, एंड अल्टीमेटली एंड रिजल्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर. इसके साथ फर्स्ट कार्बन अल्फा एंड नेक्स्ट वन इज बीटा. वी गेट बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर एज द एंड. इफ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर इज हीटेड, देयर इज लॉस ऑफ वाटर, OH. बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर को हम हीट करते हैं, लॉस ऑफ वाटर होता है, एंड वी गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड. तो लेट अस सी द डिटेल्ड. हम देखते हैं बच्चे डिटेल्ड फॉर्मेट्स के लिए. दिस इज द डिटेल्ड मैकेनिज्म. लेट अस सी द डिटेल्ड मैकेनिज्म. इसमें क्या है बच्चे, ये आपको दिया हुआ है हमने अल्फा ब्रोमो एस्टर. अल्फा ब्रोमो ये एस्टर है, COOC2H5 और इकट्ठा भी लिख सकते हैं. मैंने इसको CH2CH3 करके लिखा है, आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं. दिस इज ester part COOC2H5 and this is the first carbon, this is alpha, so it is alpha bromo ester. जिंक इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज सॉल्वेंट हमने ऐड किया, तो जिंक ये यहाँ एंट्री किया, एंड वी गॉट दिस CH2 पॉजिटिव नेगेटिव, ZnBr पॉजिटिव. CH2 नेगेटिव, जिंक अटैच है CH2 से, जिंक इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो जिंक नेचुरली पॉजिटिव होगा, CH2 क्या होगा, नेगेटिव. दिस कैन अंडरगो tautomerism like this. Tautomerizes, and we get CH2 double bond CO negative, ZnBr positive. This is called the Reformatsky region. क्या बोलते हैं हम बच्चे, Reformatsky region. The Reformatsky region, as it is a nucleophile, it can attack the carbonyl carbon, which is electronically deficient, aldehyde R. ये वापस टाटोमेराइज हो सकता है ऐसे, जैसे ये बना वापस उसी में आ सकता है. टाटोमेरिज्म है ना, टाटोमेरिज्म में दोनों फॉर्म इक्विलिब्रियम में रहती हैं, आपको पता होगा. कैन कम बैक एंड फॉर्म दिस, तभी तो इसमें रिवर्सिबल एरो दिया हुआ है ऐसे. ये देखिए नीचे टाटोमेरिज्म, स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म. इसमें जब ये वापस आएगा तो CH2 एज नेगेटिव विल अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन. अब डायरेक्ट इसको लेके भी अटैक दिखा सकते हैं, डायरेक्ट इसी को लिख लें, यहां से अटैक दिखा भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना. वी गेट दिस एडिशन प्रोडक्ट R C, यहाँ पे कार्बन है, याद रखें, C O नेगेटिव, ZnBr पॉजिटिव. O नेगेटिव यहाँ बना ना, तो ZnBr उधर चला जाएगा. CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, OC2H5 को आप इकट्ठा करके.
अब इसकी करनी है आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे, O नेगेटिव किसको लेगा, अंडरस्टूड H पॉजिटिव को, we get beta hydroxy ester. This is ester part, this is alpha, this is beta. अगर आप इसको हीट करते हैं, वो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखा दिया है बच्चे, देखें प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप इसको हीट करते हैं, इस बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर को, we get alpha beta unsaturated ester. If you heat it under experimental condition, ऐसी कंडीशन मीडियम में ऑलरेडी है, डाला है ना आपने फर्स्ट स्टेप में, देखिए ये दिखाते हैं आपको, सॉरी ये आपने एसिड डाला था, यहाँ एसिडिक कंडीशन की हुई है। लेट अस एक्सप्लेन, मैंने आर लिया था, अब मैं एसीटोन लगा के दिखा देता हूँ। एसीटोन प्लस व्हाट, एसीटोन प्लस दिस रिफॉर्मेट्स की रीजन, रिफॉर्मेट्स की रीजन है, ये अटैक किया एसीटोन के ऊपर, वी गॉट दिस नेगेटिव ZnBr पॉजिटिव। एसिडिक हाइड्रोलिसिस की ZnBr, अगर इसको H पॉजिटिव मिला तो इसको क्या मिलना, अंडरस्टूड है OH, ये माइनस हो जाएगा, एंड वी गेट दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। इज द रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, ये था बच्चे क्या, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, एंड इट्स थैंक यू वेरी मच। Anyhow you have some doubt about this lecture or any point which I have discussed, you can WhatsApp